Very good morning to all of you. So, you had completed the exam and you all did a very good. I saw your answer sheets. It is very nice performance by all. Before, in the last two lectures, we completed four reactions. Today we will go for another three reactions. First, we completed four reactions that are combination reaction A plus B is equal to C. Then decomposition C is equal to A plus B. Then its types photolytic, thermal, electrolysis by giving heat, then by using electric current, and by using sunlight we are decomposed the chemicals, compounds, reactants. In the next lecture we complete displacement reaction and double displacement reaction. Now, what is the meaning of displacement reaction and double displacement reaction? So, a very highly active element displaces another element, or say less reactive, less active metal or element. That type of reactions are known as displacement reactions. Now, what is the meaning of a double displacement? In that reaction, two metals are displaced or exchanged with each other and they go for new products. So, this type of reactions are known as double displacement reactions. आज हम कंप्लीट करेंगे three reactions and very most important reactions for this 10th level chemistry. And if you are choosing in future science, go for 11th and 12th science, तो अगर आप वहाँ पे केमिस्ट्री को स्टडी करोगे तब आज जो हम रिएक्शन सीखने वाले हैं वो हर एक चैप्टर के अंदर आप लोगों को सीखनी है, उसी का ही एप्लीकेशन वी विल यूज दैट ऑल द थ्री काइंड ऑफ रिएक्शंस एंड दे आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन and the combination of both redox reaction. Today's lecture is only depends on the basic fundamental points. I will give you two lectures. Once today in this lecture I will give you information, I will give you knowledge of oxidation, reduction and redox. And in the next video also tomorrow you will get a little bit depth knowledge, little bit, not the level of 11th and 12th, but it is most important and necessary concept, important concept for the further reaction, because we are facing the reaction in also chapter number 2 and also in chapter number 3, also in chapter number 4. That's why this reactions becomes most important. We have to study thoroughly for these concepts.
So let us start with oxidation and reduction reaction first, and then we will go for redox reaction. So what is the first heading? आप first heading notebook के अंदर लिखेंगे. As a difference we will consider here. आप लोगों को 2 marks के अंदर पूछा भी जाता है, what is the difference, or explain as a difference what is oxidation and reduction reactions. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लेफ्ट साइड हम मेंशन करेंगे नोटबुक के अंदर. नोट्स आप लोगों को 100% नोट डाउन करने हैं. एंड राइट साइड वी आर राइटिंग आवर सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, एंड दैट इज रिडक्शन रिएक्शन. एंड इन दिस lecture you will also learn the concept of oxidation number, because many of you asked me, sir, how to calculate the charge of any kind of element, it is either it is metal or non-metal. So in the redox, simple knowledge I will give you about the oxidation number. Now what is the meaning of a oxidation number? Oxidation reaction first, then move on to oxidation number. So what is the meaning of a oxidation? चलो किसी को भी अगर याद हो तो आप सोच सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो. मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ कि अगर कोई भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता हो, means in any kind of substance oxygen is added, then that type of reaction is known as oxidation reaction. Again, in any kind of substance oxygen is added and a new product is formed, then that reaction is known as oxidation reaction. Now what is the example for this? If we have magnesium which is apparently in the solid form, it is metal, and when we add oxygen in this magnesium, then what happens? This reaction we will learn in the first activity. Okay, if you read this activity, then you already know. तो क्या होगा? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये लिखना कंपल्सरी, प्रैक्टिस. क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इसमें मैग्नीशियम ने यहाँ पे क्या किया? ऑक्सीजन को ऐड किया. हाँ, यहाँ पे देख रहे हो प्रोडक्ट क्या बना? MgO. तो Mg पहले क्या था? अकेला. फिर ऑक्सीजन ने क्या किया? फ्रेंडशिप की. किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ. क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इसने क्या किया? गेन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ, तो उसको क्या नाम दिया गया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. Now what is the meaning of a reduction reaction? What is the simple basic definition is, if any kind of substance added hydrogen in itself, then it is known as reduction reaction. What is the meaning of that? Reduction means hydrogen का add होना. Simple. What is the meaning of reduction? If hydrogen is added in any kind of substance, then it will become reduction reaction. Redox मुझे बहुत पसंद है, इसलिए हर बार याद आ रहा है वो. No. Addition of a hydrogen is reduction. सर आप लोग इतनी बार रिपीट नहीं करो, अरे याद रह जाएगा. हाँ चलो, यही एग्जाम्पल लिया जाए. चलो मैग्नीशियम फिर से सॉलिड,
मेटल, यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड किया, what obtain, what is the product, it is MgH2, magnesium hydride is formed. So this reaction is known as reduction reaction. What happens in this reaction? When hydrogen is added in any kind of metal or say element or say molecule, then a new product is formed, and that kind of reactions are known as reduction reaction. आप लोगों को क्या याद रखना? Addition of oxygen is oxidation, addition of hydrogen is reduction. Now move on to the second definition. यहाँ पे क्या किया? एडिशन, यहाँ पे एडिशन। अब ऑपोजिट जाना है। If we remove hydrogen from any kind of substance, then it becomes oxidation reaction. अगर ऐड करने की आप लोगों को चॉइस मिलती है, then you have to add oxygen in that reaction, then that reaction becomes oxidation. And अगर आप लोगों को बोला जाए अभी यहाँ पे remove करो, then you have to remove hydrogen, then it becomes oxidation. Removal of hydrogen and addition of a oxygen is known as oxidation reaction. Simple. Is known as oxidation reaction. चलो एग्जाम्पल लगाते हैं। अमोनिया NH3, क्या? अमोनिया NH3। अब इसको जब आप लोग करते हो डिकम्पोज, तो बनता है N2 गैस प्लस H2 गैस। ना आप लोगों को दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है, सर ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है, क्योंकि अभी हम लोग बैलेंस ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं। We already know what is the importance of balancing of reaction, ABCD method and Tentrial method. But here in this concept there is no necessary to balance reaction, no requirement of balancing reaction, because we are studying, we are learning concept of oxidation and concept of reduction reaction. That's why if you want to balance, then you can, each and every time you can balance the given reaction. But मैं अभी क्यों नहीं कर रहा हूँ? Because right now it is not necessary to balance. यहाँ पे क्या हुआ? NH3 था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। अब जैसे इसको डिकम्पोज करवाया तो हमें क्या मिला? N2 गैस एंड H2 गैस। तो क्या हुआ? हाइड्रोजन नाइट्रोजन से दूर चला गया। ओके, तो इस टाइप के रिएक्शंस को क्या नाम देंगे? ऑक्सीडेशन। तो अब आप लोगों को यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा कि क्या करना है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। what you do? Removal of oxygen and addition of hydrogen is known as reduction reaction. You can write a note down definitions which I am telling you. सभी आप लोगों को पॉइंट्स नोट डाउन करते रहे। So what is the meaning of a reduction? Reduction means addition of a hydrogen and removal of oxygen is known as reduction. अब लोग रैप बना के भी याद रख सकते हैं। हाँ, इजी है, कॉन्सेप्ट इतना हार्ड नहीं होता। केमिस्ट्री इज टू मच इजी। चलो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया जाए तो यहाँ पे है ना एग्जाम्पल, देखो ऑक्सीजन है हमारे पास MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, decompose this compound we will get Mg solid plus O2 gas. So when you decompose magnesium oxide it will give magnesium solid and O2 gas. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हुआ? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन छोड़ के चला गया। So these are the basic examples for what?
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो यू कैन मैसेज मी फॉर डाउट्स ओनली, फॉर डाउट्स ओनली. If you want to any guidance then you can, okay, anytime you can message. Okay, अब यहाँ पे देखो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा था. मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस MgO, MgO प्रोड्यूसेस Mg+O2. मतलब दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस आर वाइस वर्सा रिएक्शंस, ऑपोजिट रिएक्शंस टू ईच अदर. In oxidation we are moving from reactant to product. MgO here in this reaction is product, but इसको हमने क्या किया, ऐसे घुमा दिया, उलट दिया, तो क्या हुआ, रिडक्शन हो गया. एंड तो मतलब क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोई भी एक रिएक्शन के अंदर कभी भी अकेला ऑक्सीडेशन नहीं होगा या ओनली रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल. बोथ occurs simultaneously in most of the cases, because in chemical reaction all the elements are taking part. ऐसा नहीं होगा कि कोई एक एलिमेंट ऐसे ही पिक्चर देखता रहेगा, नो, ऐसा नहीं होगा. तो याद रखना, कोई भी एक रिएक्शन के अंदर ना तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन होगा ना ही रिडक्शन. ये बात आप लोगों को एज अ नोट डाउन कर लेनी. Mg ऑक्सीजन गेन करता है, MgO ऑक्सीजन लूज करता है. अब इसी एग्जांपल को लेके हम लोग आगे एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं. ओके, अंडरस्टूड क्लियर. नाउ सी, इफ अब हम लोग थोड़ा सा रेडॉक्स के ऊपर जंप कर रहे हैं, थोड़ा सा. हाँ, आप लोग डाइजेस्ट कर पाओ उतना ही कंटेंट मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन अच्छी तरह से समझ रहे. नाउ मूव ऑन टू रेडॉक्स. हाँ, रेड कहाँ से आया, रिडक्शन के ऊपर से आया. रेड ऑक्सीडेशन. If in any reaction oxidation and reduction both occurs simultaneously, then it is called redox reaction. हाँ, ये याद रखना, it is called redox reaction. 3 कॉन्सेप्ट याद रहे. मैं फिर से एक और बार आप लोगों को रिपीट कर दे रहा हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन. आंखें बंद करो और बोलो, वीडियो को पॉज करो और बोलो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. व्हाट इज रिडक्शन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, removal of oxygen is reduction. Now what is the meaning of redox? If both type of reaction, oxidation and reduction, occurs simultaneously, then that kind of reactions are known as redox reaction. अब यहाँ पे एक कहानी में ट्विस्ट लेते हैं. क्या ट्विस्ट लेते हैं? अब मैं आप लोगों को थर्ड डेफिनेशन दूंगा. मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा. ओके, तो अब मैं आप लोगों को थर्ड डेफिनेशन दूंगा फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड दैट डेफिनेशन इज टोटली न्यू. And on the basis of that we will understand the concept
ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसलिए मैं आप लोगों को अभी रेडॉक्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया। व्हाट इज द थर्ड डेफिनेशन फॉर ऑक्सीडेशन? आप लोग उस टेबल के अंदर भी मेंशन कर सकते हो। ऑक्सीडेशन मीन्स loss of electron is oxidation, and another definition for reduction is gain of electron. ये ऐसा definition, this is very advanced definition, very modern definition for oxidation and reduction. Is it clear? Okay. How to apply this definition to the concept, to the reaction? अब उसको समझते हैं और इसी के अंदर हमें क्या समझना है? ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं आप लोगों को सिंपल एक ही एग्जांपल में दूंगा, दैट इज Mg solid plus O2 gives MgO। अब इस कॉन्सेप्ट को मान लो एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर ना तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ना ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या करोगे? पॉसिबल है ना, ऐसा थोड़ी ना हर एक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो तब आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को? तब आप लोगों को ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाइंड करना पड़ेगा कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है। जिसने ऑक्सीजन गेन किया वो ऑक्सीडाइज हुआ, जिसने हाइड्रोजन गेन किया वो रिड्यूस हुआ। ओके, कॉन्सेप्ट को समझना। अब यहाँ पे इसके अंदर अब हम लोग ये दोनों डेफिनेशंस को अप्लाई करेंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो हमने पहले यही एग्जांपल देखा था, क्या ऑक्सीडाइज हो रहा था? मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइजेस इन दिस रिएक्शन ऑल्सो, क्योंकि दोनों सेम। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता होगा? मैग्नीशियम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन। व्हाट? अगेन आई रिपीट, magnesium loses its electrons. Why? एक सेंटेंस याद रख लो, चैप्टर नंबर 3 के लिए काम आएगा। Metals have much more tendency to lose electrons. They have highest tendency to lose electron because you already studied or will study magnesium. What is the atomic number of this magnesium? It is 12. And if it loses 2 electrons from its outermost orbit, what is the actually configuration for this magnesium? 2, 8 and 2. Okay, 2, 8, 2 is the configuration. If magnesium loses these 2 electrons, then what happens? It becomes very stable. Why it becomes very stable? Because its octet will be completed. Okay, क्योंकि ऑक्टेट का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंपल्सरी होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स कंपल्सरी होंगे। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है मैग्नीशियम, तो क्या हो जाएगा? वो स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा। और कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि मैग्नीशियम को, अगर मान लो हमारे पास घर के अंदर मैग्नीशियम है या लेबोरेटरी के अंदर मैग्नीशियम है, तो और उसको टच किया तो करंट लगा। करंट नहीं लगता, क्यों? बिकॉज इट इज 100% न्यूट्रल कंपाउंड। चार्ज इज न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर होगा तो हमें क्या फील होगा? करंट फील होगा। तो ऐसा नहीं है, इट इज 100% न्यूट्रल कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या होता होगा? मैग्नीशियम loses 2 electrons and converted into 2 electrons। आप कोई भी हम सुबह ब्रेकफास्ट किए, ओके, और हमने वर्क किया 2-3 आवर्स, वर्कआउट किया, तो वो एनर्जी बर्न हो जाती है। तो उसके ऊपर ऑलवेज
इफ इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो कोई भी एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज आता है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ये बात क्या है? तो यहाँ पे मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब ऑक्सीजन को देखो, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन? एटॉमिक नंबर इज 8. व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? 2 6. In its outermost orbit, how many electrons? 6. How many electrons required for the oxygen to complete its octet? 2. Okay. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे? ये रहे सर, ये रहे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? ऑक्सीजन। क्या बना लेगा? O-2। यहाँ पे मैं ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और वो कन्वर्ट कहाँ पे हो जाएगा? O2 टू माइनस के अंदर, O2 माइनस के, O के ऊपर -2। हाँ, और फिर यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। फिर अगर आप लोग नेट रिएक्शन देखोगे, अब ये नेचर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, वो O2 के फॉर्म में होता है। तो फिर आप लोग यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो O2, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? MgO। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिमिलर चार्ज है। सिमिलर चार्ज, ये +2 और ये -2, वो भी कैंसिल हो जाएगा, सिमिलर चार्ज है इसलिए। और डायरेक्टली जो 2 एलिमेंट होते हैं वो डायरेक्टली कंबाइन हो जाते हैं एंड फॉर्म्स MgO। तो ऐसे बनता है कि MgO सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हो जाने से थोड़ी ना बनता होगा। ओके, तो ये एक पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस थर्ड डेफिनेशन आप लोगों को याद रखना। अब थोड़ा सा टाइम जो है वो बढ़ गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ आज का लेक्चर। लेकिन डोंट वरी, कल मैं फिर से यही एक जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा, रेडॉक्स से। ये एग्जाम्पल भी अगर पॉसिबल होगा तो एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, गो इन द डेप्थ। हाँ, गो इन द डेप्थ, एंड टुमारो वी विल लर्न ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो। ओके, श्योर, इट इज श्योर कि इसका मैं आप लोगों को एक और बार रिवीजन दूंगा। और एक्चुअली में यही कॉन्सेप्ट जो था मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, वही ऑक्सीडेशन नंबर का फर्स्ट स्टेप है, वही ऑक्सीडेशन नंबर का फर्स्ट स्टेप है। ऐसा क्यों सर? द डेफिनेशन फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स either gain or lose by any kind of element to form a chemical bond with another element is known as its oxidation number. Total number of electron gain or lost by the particular element to form a chemical compound, to form a chemical bond is known as oxidation number. Or you can say that what is oxidation number? Charge present on the species is also known as oxidation number. And it is too much difference between the valency and oxidation number. Valency is combining power. It is fixed for any kind of element. It is fixed. Valency is fixed, but the oxidation number is variable in different kind of compounds, and that depends on number of electron gain and lost. तो ये मैंने आप लोगों को बात बता दी। इस कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ भी पता नहीं चला हो तो आज के आज ही डाउट आप लोग पूछोगे, और फिर कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को मिलेगा यही बेसिक कॉन्सेप्ट बट इन डेप्थ, बिकॉज कल हमें ये भी समझना है व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।